کیا صرف ایک صوبہ بن جانے سے ایڈمنسٹریشن اور گورننس بہتر ہو جائے گی؟ یقیناً ہمارے مسئلے صوبہ بننے سے حل ہوں گے. ہمارا مسئلہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہمیں اپنا صوبہ دیا جائے. ہم پاکستان کی خیر مانگتے ہیں تو خدا را ہماری بات کو سنا جائے. جہاں جہاں صوبے بننے ہیں قوموں کو شناخت ملنی چاہیے اور قوموں کو اختیار ملنا چاہیے، ان کو عزت ملنی چاہیے اور ان قوموں کی زبانوں کو قومی زبانوں کا درجہ ملنا چاہیے، اور تاکہ تمام کہیں کہ یہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان ہے، تو بھی پاکستان ہے، میں بھی پاکستان ہوں. ورنہ باتوں سے کچھ نہیں ہوگا اور سب لوگ بیزار ہو جائیں گے. بہت شکریہ. آپ نے اپنا موقف جو ہے وہ سامنے رکھا. محترمہ آسیہ صاحب، آپ نے سنا دریجہ صاحب کی بات. میں صرف یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ ایک اگر ایڈمنسٹریٹو یونٹ جو ہیں ان کو تقسیم کر بھی دیا جاتا ہے تو آپ کے خیال میں اس میں اور پری ریکویزٹس کیا ہیں جو کہ ان صوبوں کو کامیاب کرنے میں جو مددگار ثابت ہوں گے؟ شکریہ. پہلے تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ ایم کیو ایم پاکستان ہم ایڈمنسٹریٹو یونٹس کی بات کرتے ہیں، ہم لنگوسٹک بنیادوں پر پروونسز کے مخالف ہیں. دوسرا، جب ابھی بات ہوئی کہ جی اتنی ٹیکنیکلٹیز، بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں ہم سچ سے کیوں بھاگتے ہیں. ہم سچ بولتے ہوئے ہماری زبانیں لڑکھڑاتی ہیں. چاہے کبھی وہ ڈیم کا مسئلہ ہو وہ پولیٹیکل بن جائے گا، نہروں کا مسئلہ ہو، پانی پہنچانے کا مسئلہ ہو وہ پولیٹیکل بن جائے گا، K4 ہو وہ پولیٹیکل ہو جائے گا. یعنی کہ آپ اس کو سوچیں کہ ڈسٹینس فرام دا پروونشل کیپٹل، جو علاقہ پروونشل کیپٹل سے جتنا دور ہے وہ اتنا ہی تباہ حال ہے. آپ کو پروونسز بنانے ہوں گے ایک، اور اس کے ساتھ آپ کو آرٹیکل 140A کی کمپلیٹ تشریح کرنی ہوگی. آپ کو ڈیوالو کرنا پڑے گا، پورے وسائل اور اختیارات نیچے تک دینے ہوں گے، تب کہیں جا کے پاکستان چلے گا. غزہ جس پہ اسرائیل نے بمباری کر کر کے مار دیا، درمیان میں غزہ بمباری ہو رہی ہے، ادھر ان کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہو رہے ہیں. آپ کے صوبے لوکل باڈیز کے الیکشن ہی نہیں کرا رہے، اور جو کرا رہے ہیں وہ اختیار نہیں دے رہے، وہ وسائل نہیں دے رہے. بہت شکریہ. تو نور عالم صاحب، ہم نے دو رائے سنی. آپ کا اس میں جو مطمع نظر ہے وہ بھی آ جائے، پھر ہم دانیال صاحب کے ساتھ اور پھر میاں عامر صاحب کی طرف جا رہے ہوں گے. صوبوں کی بات ہے. میں آپ کو، اگر آپ زبانوں پہ پھر کریں گے، پھر لوگ کل خاندانوں پہ کہے گا کہ خٹک ہے، وہ کہے گا یوسف زئی ہے، وہ کہے گا اس پہ ہے. اچھا، ریسورسز پہ بھی ہے. میں نے آپ کو بتایا، میں ذرا بتانا چاہتا ہوں. بلوچستان سے اب آپ کو گیس جو ہے قادر فیلڈ سے سندھ سے مل رہے 66%، خیبر پختونخوا کے اس سے 16% آپ کو گیس مل رہا ہے. آپ کو مائن منرلز جو ہیں، اگر ریکارڈک ہے وہ بلوچستان سے ہے، اگر آپ کو وہ دوسرا ہے وہ وہاں سے مل رہا ہے. آپ اس کو کیسے وہ کریں گے؟ میں نے آپ کو خالی سمپل بتا رہا ہوں کہ میری ریکویسٹ یہ ہے، پروونسز کے میں چھوٹے ہونے پہ وہ نہیں ہوں، لیکن آپ مجھے بتائیں گورنرز آپ الگ وہ کریں گے، اس کے لیے پھر آپ وزیر الگ رکھیں گے، بیوروکریسی ان کی گاڑیوں کا کیا آپ وہ کریں گے، وہ حساب کتاب ایسے کیسے پورے کریں گے؟ یہ پلیز بتا دیں آپ ان کا فائنینشیل وہ کیسے پورا کریں گے. اچھا، پھر جب آپ کے لونز ہیں، دیکھیں ابھی بھی میرا ایز اے چھوٹے صوبے سے مالک وہ ایک حیثیت کے لحاظ سے سارا ورلڈ بینک کا آپ قرضہ لیتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ مہنگائی، ہماری اکانومی خراب ہے، ہم پہ پیٹرول ڈیزل ہر چیز وہ ہو جاتا ہے. میرا سوال ہے آپ لوگوں سے، پلیز آپ مجھے بتائیں، آپ صوبے بنائیں، ہزارہ بنانا چاہتے ہیں، صدرن خیبر پختونخوا بنانا چاہتے ہیں، جو بھی بنانا چاہتے ہیں آپ بنائیں، لیکن مجھے جان سانس لینے کا تو وہ دیں. میں پاکستانی ہوں، پلیز مجھے کوئی پارٹیز اور زبانوں پہ نہ تقسیم کریں. آئی ڈونٹ فالو personalities. I follow Pakistan and we all should follow Pakistan. If it is good for Pakistan, ٹھیک ہے آپ بنائیں، لیکن پہلے پنجاب کی جو حالت ہے وہ ہے جو اور صوبوں کے ساتھ کریں. کیونکہ میں جب پنجاب میں، سر میں ایک منٹ، میں جب پنجاب یا اپنے ایون اسلام آباد میں میرے بھائی نے یہاں پہ، میری بہن نے کہا کہ ہم پشاور والے یہاں پہ یا چترال والے یہاں پہ مزدوری کرتے ہیں، تو جب بیمار ہو جاتے ہیں یہاں پہ رہتے ہیں، تو اس لیے اس ہاسپٹل میں پمس میں چلے جاتے ہیں، ورنہ کوئی وہ نہیں ہے.
फैसिलिटीज पहले पेशावर बहुत अच्छा होता था, 14 साल से वहाँ पे भी हर चीज़ बुरा हाल है। आपका मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह सामने आ गया कि ये जो इस वक्त एंडीमिक प्रॉब्लम है मौजूदा सिस्टम की, ये ना हो कि ये भी अगले एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को मुंतकिल हो जाएं। बैरिस्टर दानियाल साहब, आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। मौजूदा सिस्टम को कोई बेहतर करने का कोई हल आपके सामने नज़र आ रहा है? आप कर पाएंगे क्या? हम यहाँ बात कर रहे हैं, फिर वही बात है कि सूबा जो है वो सिस्टम बेहतर करेगा या कोई और निज़ाम है। इफ़ वन रीजन डिमांड्स अ प्रोविंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट वी नीड टू एड्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सबसे पहली जो चीज़ है उसमें वो पॉपुलेशन है कि व्हाट इज़ द पॉपुलेशन। सेकंड, व्हाट आर द गवर्नेंस गैप्स। ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक बेस। फिर उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, व्हाट इज़ द रेवेन्यू पोटेंशियल। वो फिर कि वफाक के ऊपर गिर जाएगा, ये रेवेन्यू पोटेंशियल उसका है क्या। व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, जो अभी आमिर साहब जिसकी बात कर रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट क्या है उसके। व्हाट हैपन्स टू द वाटर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो दूसरों से पानी मांगेगा, रिसोर्सेज कैसे चलाएगा। व्हाट हैपन्स टू द रिप्रेजेंटेशन, उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, जिसकी मैंने पहले भी बात की, कि इन तमाम चीज़ों से ज़ुबान एक जैसे होने से आम बंदे को क्या फ़र्क पड़ेगा। क्या वो शाम को पंजाबी खाएगा या पश्तो खाएगा। मतलब व्हाट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो है, हाउ वुड ही बेनिफिट फ्रॉम इट। मतलब व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि भाई कि ये अगर हम इसका कोई भी जवाब हो, फॉर इंस्टेंस, तो अगर तो ये तमाम चीज़ें एड्रेस नहीं होती तो फिर आपका एक ऑल्टरनेट निज़ाम की बजाय आप बात करें एक लोकल स्ट्रॉन्ग लोकल बॉडीज गवर्नमेंट, जिसको आप एम्पावर करें, दैट गिव इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स द प्रेडिक्टेबल फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी कि वो पैसा किस तरह आम बंदे तक ट्रिकल डाउन कर सके। फॉर दैट सिटीजन द नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट और स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज द सिस्टम, हाउ इट शुड डेवलप। बहुत शुक्रिया मियां साहब। आखिर में इस राउंड के आखिर में मैं आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर आप इन चारों मोअज़्ज़ज़ अहबाब को सुनने के बाद आप हमें वे फॉरवर्ड जो है वो क्या सजेस्ट करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगेन मैं वहीं से शुरू करूँगा। एक जुमला के मुल्क लोगों से है और हम लोगों की वेलफेयर की बात कर रहे हैं। दानियाल साहब ने अभी बात की, इन्होंने जो सवाल किए और जो पहले सवाल हुए, मैं कोशिश करता हूँ मैं उनका जहाँ तक जवाब दे सकूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ पे काफ़ी देर से काम कर रहा हूँ और मेरे पास काफ़ी इसके रिसर्च और एविडेंसेस हैं, और जिसको भी चाहिए होंगे हम उसको इंशाल्लाह दे भी देंगे और फिर ज़्यादा बेहतर उसके ऊपर बात हो सकेगी। जो एक बात सबसे पहले आती है कि ये लोगों की वेलफेयर होगी या नहीं होगी, ये आइडिया है ही इसलिए कि लोगों की वेलफेयर हो। इस सिस्टम में लोगों की वेलफेयर नहीं हो रही, इस पर तो सब एग्री हैं। सारे पैनलिस्ट ने कहा कि नहीं हो रहा, तो जब नहीं हो रहा तो फिर एक और तजर्बा करना चाहिए। लोकल गवर्नमेंट बेहतरीन आंसर है, बट हमारा लोकल गवर्नमेंट 80 साल से चला नहीं है। अच्छे लोकल गवर्नमेंट के सिस्टम भी आए हैं, बुरे भी आए हैं। अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर कभी लोकल गवर्नमेंट नहीं चला। तो अभी दूसरी जो बात हो रही है कि यहाँ पे कॉस्ट बढ़ जाएगी और बाउंड्रीज डिसाइड नहीं होंगी और पानी डिसाइड नहीं होगा, वसाइल डिसाइड नहीं होंगे। हम जो प्रपोज कर रहे हैं वो बाउंड्रीज ऑलरेडी बनी हुई हैं। हम प्रपोज करते हैं कि आप हर डिवीजन को सूबा बना दें। इसमें कोई लिंग्विस्टिक बेस नहीं आएगा, कुछ नहीं आएगा। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस ऑलरेडी मौजूद हैं, आप उन्हें सूबा डिक्लेयर करें। उसी के कमिश्नर को आप चीफ सेक्रेटरी बना दें और उसी के आरपीओ को आप आईजी बना दें, और ये जो पूरी आपकी एक सेक्रेटेरिएट की लेयर है ये ख़त्म हो जाएगी। अगर सूबा इतना छोटा हो कि लोगों की नज़र अपनी सूबे की हुकूमत के ऊपर हो, तो किसी को ये फिर नहीं जरूरत होगी कि वो आवाम की तालीम का पैसा, सेहत का पैसा निकाले और अपने ऑफिस या अपनी किसी लग्जरी के ऊपर खर्च करें। बहुत शुक्रिया मियां साहब। इस पर मैं आखिरी सेशन में दोबारा आपकी तरफ आऊँगा। ख़वातीन और हज़रात, आपने हमारे पांचों मुअज़्ज़ज़ पैनलिस्ट जो हैं उनको सुना। यकीनन मैं आपसे सवाल जवाब भी लेना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी इजाज़त से मैं चाह रहा हूँ कि ये जो गुफ्तगू है काफ़ी हद तक ये अब इक़्तिसादियात और मईशत की तरफ कन्वर्ट हो गई, और हमारे पास अगले पैनल के चारों मेहमान मौजूद हैं, उनको भी सुन लिया जाए। आपको भी मैं इसका फॉर्मेट समझा दूंगा और उसके बाद हमारे पास एम्पल टाइम होगा कि हम इनको क्लब करके आपसे गुफ्तगू कर सकें। बहुत तालियां आप सब मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के लिए। गुफ्तगू का आगाज़ है इस राउंड में। मैं पहले बताता चलूँ, आपके सामने ये एक स्क्रीन है जिस पे 6 मिनट का
टाइमर है, 6 मिनट के बाद हम जो है पर स्पीकर उसको 6 मिनट, तो उसके बाद दूसरा राउंड होगा, वो अगेन 6 मिनट्स ईच, और फिर हम क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जा रहे होंगे। मैं खाकान आपसे स्टार्ट लेना चाह रहा हूँ। आप हमें थोड़ा सा एजुकेट करेंगे कि क्या मौजूदा जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं उनसे ही काफ़ी रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, या अगर उसको हम नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पे जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास रेवेन्यू जनरेशन जो है उसके ऑप्शन ज़्यादा हो जाएंगे? ये जो आपके सामने स्लाइड है ना, इसमें आप ये देखेंगे व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू इन द एंड। चाह तो हम ये रहे ना कि कॉम्पिटेंट स्टेट हो, जिसको ईस्ट एशिया ने डेवलपमेंटल स्टेट मॉडल डिफाइन किया, मैं उसको एक कॉम्पिटेंट स्टेट जिसके दो जुज हैं, जैसे इन्होंने कहा कि किस फंक्शन को कहाँ रखना है बिकम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। नंबर 2, ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये निज़ाम कभी भी डिलीवर नहीं करेगा। ये मैंने पॉलिटिकल गवर्नेंस का एक मॉडल आपके सामने रखा है 5 साल का। पाकिस्तान का मसला पैसे एक्चुअली नहीं है, पाकिस्तान का मसला एक्सपेंडिचर साइड ऑफ द इक्वेशन को ठीक करना है। एक और कमीशन बनाइए कि एक्सपेंडिचर साइड, जो कि आईएमएफ भी टोटली मिस कर गया है, सब्सिडी रिफॉर्म कैसे होगा, 17 सब्जेक्ट से तकरीबन 300 अरब खर्च हो रहा है, वो कैसे ठीक होगा। अब अगर आप ये सब कुछ कर पाए, उसके लिए आपको जब तक कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल्स नहीं लाएंगे इस सेटअप में, तो आप एक जनरलिस्ट मॉडल ऑफ, जिसे कहते हैं ना एग्जीक्यूटिव से, इस मुल्क को चला नहीं पाएंगे। थिंकिंग कमीशन बनना चाहिए प्लानिंग कमीशन को, और इसको प्रोजेक्ट कमीशन से निकल जाना चाहिए। ये एक और रिफॉर्म है जो कि आपको हाईएस्ट सतह पे करना चाहिए। एंड आई थिंक दिस 5 ईयर मॉडल इज द वे फॉरवर्ड फॉर पाकिस्तान। थैंक यू खाकान। डॉक्टर फ़रक सलीम साहब, मुझे थोड़ा सा वो जो मेरा शुरू में क्वेश्चन था रेवेन्यू साइड, उसको समझा दीजिएगा। मैं एक्सपेंडिचर साइड पे आप पे अगले राउंड पे आऊँगा। आपके ख्याल में ये टैक्स कलेक्शन में कितनी बेहतरी लाएगा ये सिस्टम? देखिए, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अगर आप 22-23 साल का पहले का बजट निकाल लें तो उसमें जो हुकूमत ने एफबीआर को हत्फ दिया था टैक्स कलेक्शन का, दैट वाज अबाउट 1000 बिलियन। और पिछले साल हुकूमत खुद से हमें बता रही है कि तकरीबन 17,000 बिलियन टैक्स की मद में इकट्ठा कर लिया गया। तो मेरे नज़दीक तो ये टैक्स रेवेन्यू वाला मामला जो है ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है। हर पाकिस्तानी बच्चा, बूढ़ा, मर्द और औरत वो टैक्स के जाल में फंसे हुए हैं, वो पूरी तरह टैक्स दे रहे हैं। हमारा मसला टैक्सेशन का नहीं है, हमारा मसला एक्सपेंडिचर का है। मैं समझता हूँ कि अगर सूबे बनाना भी चाहते हैं तो दे शुड नॉट बी बेस्ड ऑन आइडेंटिटी, दे शुड स्ट्रिक्टली बी बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। ये सरायकी सूबा बनाना है, वो हज़ारा का सूबा बनना है, वो साउथ पंजाब है, भावलपुर और पटवार, अगर सूबे बनने हैं या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने हैं, वो आइडेंटिटी की बेस के ऊपर नहीं, वो आपने बनाने हैं परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। अब आप सोचिए कि हमारे पास जो इस वक्त सिस्टम है, ये एक वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें और जो गवर्नेंस का सिस्टम चल रहा है, ये इस खित्ते में बिजली, पानी, डीज़ल और चीनी, ये 4 चीज़ों की मैंने कीमतें कंपेयर की हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल एंड अफ़गानिस्तान, इस सिस्टम ने इस खित्ते की महंगा तरीन डीज़ल, महंगी तरीन चीनी, महंगी तरीन बिजली इस सिस्टम ने प्रोड्यूस की है, जिस सिस्टम में हम बैठे हैं, जो सिस्टम एक वफाकी हुकूमत और 4 सूबाई हुकूमतें। अच्छा, अब द क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड कि हम जा रहे हैं 4 सूबों से 33 की तरफ, वाई डोंट वी गो फ्रॉम 4 to 0? जो आपकी मुकामी हुकूमत हैं, जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं। देखिए, मैं जो सिटीज़न है, शहरी है, वो किसी सेक्रेटेरिएट में नहीं रहता, वो ज़िले में रहता है। उसके बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, उसके माँ बाप को अच्छा अस्पताल चाहिए, वहाँ पे हमें अच्छी रोड चाहिए, कचरा भी लोकल मामला है, स्कूल भी लोकल मामला है, तो सब कुछ लोकल गवर्नमेंट कर दें। ये बीच में से जो प्रोविंशियल लेयर है, ये वियतनाम ने ख़त्म करने, वियतनाम इज़ मूविंग टूवर्ड्स इट, लैटविया, एस्टोनिया, लिथुएनिया, ये सब ममालिक जो हैं ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मिडिल टेयर जो है वो सिर्फ पैसा खाती है, वो मिडिल मैन है, उसकी ज़रूरत ख़त्म कर रहे हैं। थैंक यू।